Good morning students. In the last video we are discussing our chapter number 2 in which the last topic was dimensional analysis. In this topic we have discussed our first topic, that is to check the dimensional consistency of any given formula. We have discussed one question as well. So today we are going to take another example related to this question and this property. So the second example is हमें एक इक्वेशन दी हुई है बेटा 1/2 mv square is equals to mgs. This equation is basically kinetic energy is equal to potential energy, means energy conservation law is applicable in this equation. So we have to check that this is this equation dimensionally consistent or not. तो अब हमें क्या करना था, मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या कि all the terms, all the physical quantities which are given in the equation, we have to write down the dimensional equations for those physical quantity. So here 1/2 is constant. As I have told you earlier that such type of constant doesn't have any dimension. The next is m for mass, v for velocity, g for gravitational acceleration, h for height. So we will write the dimensional equation for mass, velocity, gravitational acceleration and height. If I will write mass, then it will be m is equal to m1 L0 T0, because here in this term only the mass comes in picture. There is no nothing like related to length and time. So we are taking the power 0 of length and time, and I have told you that हमारे पास कुछ भी है जिसकी पावर 0 है, चाहे वो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई वेरिएबल है, कोई बहुत माइनर लेवल पे है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, किसी की भी पावर हम 0 कर देते तो दैट वैल्यू टर्म्स एज 1. तो हमने यहाँ पर जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन नोटेशन के लिए हमने L0 T0 लिखा है बेटा. बाकी यहाँ पर जो मास का जो एक्चुअल फॉर्मूला है दैट इज m1 L0 T0. इन द सिमिलर वे वी हैव written the formula dimensional equations for velocity, gravitational acceleration and h. We will measure this h, that is height, in terms of length. So its dimensional formula is equal to m0 L1 T0. Gravitational acceleration, as this is a gravitational acceleration, but the dimension of gravitational acceleration is similar to the simple acceleration, that is meter per second square. Its dimensional formula will be m0 L T minus 2, and you all know the dimensional formula of velocity. So we have written all these formula. Now what's our next step? We have to put all these formula in the given equation. So write down all these dimensional formulas in the given equation. We will put here. Now next we will multiply all these equations, and I have told you that when base of the same, when we multiply any two quantities and the base is equal, then power will be added. By using this property we can solve the left hand side and right hand side. After solving we will see that the dimensional formula in the left and right hand side is equal, and that is equal to m1 L2 T minus 2. This is equal on both the sides. It means this given equation is dimensionally correct. We are not bothering here about 1/2 because 1/2 is constant, that is a that doesn't have any dimension. तो ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है बेटा, ये जो है हमारी ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट अगर कांस्टेंट हमारा 1/2 mv स्क्वायर के साथ लग रहा है या फिर mgh के साथ लग रहा है, हमें ये जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, इसकी हेल्प से हम कांस्टेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. हम इसकी हेल्प से केवल उसके डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं. तो ये इस मेथड से हमारा ये प्रूव होता है कि दिस इक्वेशन इज बेसिकली डायमेंशनली correct. Come to the next question. Next part is your second type of use of dimensional analysis, that is basically conversion of units in one system into another system. In this topic we will discuss that we are given a particular unit system and we have to convert that unit system into another unit system. लाइक मैं आपको बोलूँ बेटा कि आपको कोई लेके आना है, कोई चीज लेके आनी है मार्केट से, लाइक यू हैव टू बाय 5 kg शुगर. तो आप क्या बोलोगे, मम्मा ने आपको बोला है कि 5 kg शुगर लेके आनी है, तो व्हाट इज एक्चुअली हमें क्या लेके आना है, 5 kg लेके आना है. तो अगर हम इस 5 kg को डीपली स्टडी करते हैं तो हम क्या देखेंगे बेटा, 5 इज बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू while kg is the unit.
न्यूमेरिकल वैल्यू को, ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपकी कुछ भी हो सकती है, दैट इज मैं अगर इसको n से डिनोट करूं तो दिस इज n एंड यूनिट को अगर मैं u से डिनोट करूं तो दिस इज टर्म एज nu, मींस n इनटू में u इज इक्वल टू में q इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हमारे पास दो यूनिट सिस्टम है, लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बोथ आर इक्वल। अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलूं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो आपको जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम है उसमें n1 u1 कितना दे दिया है बेटा 1 मीटर, n1 इज 1, u1 इज मीटर, while the in the other system n2 you have to find out and u2 is सेंटीमीटर। सो u2 की हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर उसी टर्म को यहाँ पर लिखना स्टार्ट करती हूँ तो दिस इज n1 दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट यूनिट सिस्टम, n2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेकंड यूनिट सिस्टम। u is basically unit and the any quantity that have unit definitely have dimensions। तो अगर मैं बोलती हूँ कि डायमेंशंस को हम कैसे लिखते हैं, MLT की पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। जब हमारे पास MLT दो अलग अलग सिस्टम में यूज करें तो मैंने इसको M1 L1 T1 M2 L2 T2 की टर्म्स में ले लिया है बेटा। और हमारे पास हमें नहीं पता है, हम जनरल वे में यहाँ पे अभी हम फॉर्मूला ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता है कि MLT की पावर्स कितनी कितनी है। अगर हमें नहीं पता है तो हम इनकी पावर बेसिकली A, B एंड C ले लेंगे। तो अगर हमें N2 फाइंड आउट करना है देन वी विल टेक दिस M2 L2 एंड T2 in the denominator of this side, left hand side, so it will term as n1 into में m1 by m2 की पावर a, l1 by l2 की पावर b and t1 by t2 की पावर c। this is the basic formula। इसकी हेल्प से हम हमारे जो टर्म्स है उनको यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, स्मॉलर द यूनिट बिगर द मैग्नीट्यूड, जितनी आपकी छोटी यूनिट होगी उतना ही मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। लाइक आप देख सकते हो मीटर इज ग्रेटर विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर। तो मीटर में अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट छोटी है तो उसका क्या है मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा है। तो स्मॉलर द यूनिट बिगर विल बी द मैग्नीट्यूड। वी विल डिस्कस सम एग्जांपल। जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको बोला है क्या कि आपको 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो अगर यहाँ पे जूल को अर्ग में कन्वर्ट करें तो बेटा ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। ऐसी चीजों को सोल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं बेटा कि जब हम जूल को कन्वर्ट कर रहे हैं अर्ग में तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि जो भी गिवन यूनिट है उसको हमें चेक करना है कि बेसिकली ये किस चीज की यूनिट है। तो हम देखते हैं कि जूल हमारी किस चीज की यूनिट है, वर्क या एनर्जी की यूनिट है। तो जिस भी चीज की यूनिट आपको दी हुई सबसे पहले आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो उसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू में m1 L2 T-2। उसके आगे हम देखते हैं कि जो जूल है वो हम चेक करते हैं कि कौन से यूनिट सिस्टम में दिया हुआ है। तो जूल हमें दिया हुआ है MKS यूनिट सिस्टम में, MKS यूनिट सिस्टम में दिया हुआ है, सॉरी SI यूनिट सिस्टम में। अगर ये SI यूनिट सिस्टम में दिया हुआ तो फिर हम इसकी बेसिकली यूनिट लिखेंगे। तो इसकी यूनिट आएगी बेटा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है अर्ग में। अर्ग हमारी किस में होती है, CGS में होती है। तो इस यूनिट सिस्टम में इसकी जो हमारी यूनिट होगी वो क्या होगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें क्या है 1 जूल को 1 अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो हम ले लेते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। u1 हमें पता है जूल है एंड u2 हमें पता है अर्ग है। तो हम लिख सकते हैं n1 जूल इज इक्वल टू n2 अर्ग। ये जो टेबल बनाई हुई है बेटा इसमें हमने MLT की बेसिकली वैल्यूज को लिखना है दोनों ऑन द बोथ द सिस्टम्स। सो n1 इक्वल टू 1, n2 वी हैव टू फाइंड आउट। m1 that is 1 kg, l1 1 मीटर, t1 1 सेकेंड। CGS में हम बेसिकली जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो पूरी की पूरी n में ले लेते हैं। उसके बाद में जो हमारे MLT आते हैं उनमें हम सिंपली 1 1 1 लिख के चलते हैं जो भी यूनिट सिस्टम होता है उसमें। तो अब हमारे पास हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया था वर्क या एनर्जी का m1 L2 T-2। वी विल कंपेयर दिस फॉर्मूला विद MA LB TC। On comparing, we will get A equal to 1, B equal to 2 and C equal to -2. By this we will see N2 is equal to N1, M1 by M2 की पावर A। ये हमने पिछली स्लाइड पे जो फॉर्मूला हमने वहाँ पे निकाला था वो हमने यहाँ पर लिखा है। L1 by L2 की पावर B, T1 by T2 की पावर C। So N2 is equal to N1 की वैल्यू 1 है, M1 की वैल्यू 1 kg है। 1 kg को जो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 100 ग्राम अपॉन 1 ग्राम की पावर 1।
L1 की पावर 1 मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे इट विल टर्म एज 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर -2। हमारे पास जब सेम यूनिट होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो ग्राम से ग्राम गया, कैंसिल से कैंसिल सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बच गया क्या बेटा 1 इंटू 1000 की पावर 1, 100 की पावर 2 और 1 की पावर -2। 1 की पावर -2 is also 1, so you can see n2 equal to 10 to the power 7. Now we will write this n2 here. So 1 joule is equal to 10 to the power 7 अर्थ। आई होप ये जो कन्वर्जन है आपको ये क्लियर हुआ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब इससे अगली चीज हम डिस्कस करते हैं, रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है तो उनका रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लाइक मेरे को यहाँ पर कोई भी हमें दे सकता है कि मेरा जो भी चीज है वो इस वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि जो मेरा सिंपल पेंडुलम है उसका जो बोब है वो एक स्प्रिंग से अटैच है और बोब की मास दिया हुआ है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g और जो सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है उसका वो दिया हुआ है l। तो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। तो हमें टाइम पीरियड के लिए बेसिकली दिया हुआ कि ये जो टाइम पीरियड है ये हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बोब एंड ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जब हमें इस तरह से दिया हुआ होता है तो जो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जो चीज दी हुई है उसको लिखते हैं दैट इज t इज इक्वल टू और यू कैन से प्रोपोर्शनल टू l की पावर x, जो भी अननोन है उन सबको इसी तरह से लिख लो आप, l की पावर x, m की पावर y, g की पावर z। वी डू नॉट नो कि ये x y z क्या क्या होंगे। k जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसको हम कोई चीज नहीं मेजर करते, सिंपली जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, जो भी हमारी इस इक्वेशन में पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज आई है उनकी डायमेंशंस लिख लेनी है। तो m की लिखी, l की लिखी, g की लिखी और t की लिखी। m इज मास, l इज लेंथ, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t इज टाइम पीरियड। ऑल ऑफ यू नो दैट dimensional formula of all these four physical quantities. You have to write it here. Now what is our next task? We have to put all these dimensional formula in the given equation. So we will put here in this equation. When we will put here, how can you write t is equal to k हमारा डायमेंशन लेस था तो उसकी डायमेंशन नहीं होगी, उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। So m की पावर x, l की पावर y, t की पावर g की पावर z। जब आप रखते हो तो वही जैसे मैंने आपको पहले हमने सोल्व किया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस इक्वल होने पे पावर ऐड हो जाती है। तो m की पावर देखिए यहाँ पे 0 की पावर x है दैट इज 0, 1 की पावर y है दैट इज y और 0 की पावर z है तो z 0। तो हमारे पास 3 जगह m है तो m की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 0 प्लस y प्लस 0 दैट इज m की पावर y। नेक्स्ट हमारा l है, l की पावर x, यहाँ पे l की पावर 0 इंटू y 0, l की पावर z, तो x प्लस z आ जाएगा l की पावर में। t की पावर में कितना आ जाएगा बेटा, केवल यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं लास्ट वाले टर्म में तो -2z और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज हमारी बनी रहेगी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि m की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर y है तो y इक्वल टू 0, l की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x प्लस z है दैट इज x प्लस z इक्वल टू 0। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर t की पावर 1 है और यहाँ पर t की पावर -2z है दैट इज -2z इक्वल टू 1। So from this equation you can find out that z equal to -1/2, and when you will put here z equal to -1/2 then you will get x equal to +1/2 and you already get that y equal to 0. So what you can say that these are the three values of the three constant, x equal to 1/2, y equal to 0, z equal to -1/2. When you will put all these values in this equation then you will get t equal to k, l की पावर हाफ, g की पावर -half, and we know that half is denoting the simply square root. So we will, and -half है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो we can write this formula of the time period of simple pendulum as t is equal to k under root l by g. I hope ये आपको क्लियर हुआ बेटा। So k की जो वैल्यू होती है जब हम इसको आगे दूसरे मेथड से यूज करते हैं तो वो हमारी निकल के आती है 2π। तो जो एग्जैक्ट हमारा फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l by g। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।